Hello students, I am Monica Sor from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler, part 2. Yes, the Nazi worldwide. Now what is this Nazi worldwide? See, Nazis are linked to a system of belief and set of practices. According to their ideology, there was no equality between people but only a racial hierarchy. Racism or Hitler borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. The argument of Nazi was simple, the strongest race would survive and the weak ones would perish. अब इधर नाजी ने जो है हिटलर की जो पार्टी वो थी नाजिज्म, उन्होंने उनको क्या बोला कि मुझे ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए अपने यहाँ पर जो कि स्ट्रॉन्ग हो एंड हु आर ब्रेव, हु कैन फाइट फॉर द कंट्री, एंड जो वीकर सेक्शंस है जैसे हैंडीकैप्स हैं या जो ओल्ड एज है, जो कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, दोज पीपल आई डोंट वांट. Straight away he was just like that and he told this way. Now see, the Aryan race was the finest who retained its purity, became stronger and dominated the world. The other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward to concentrate all Germans geographically in one place. अब उन्होंने हिटलर का क्या मानना था, देखो हिटलर बोलते थे कि मुझे ना ये जो चाहिए जो आर्यन रेस है ना वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है और मुझे वो ही चाहिए, मुझे और कोई भी हमारे यहाँ पर नहीं चाहिए. सी ही नाउ इज अ डिक्टेटर. डिक्टेटर में क्या होता है, वॉट एवर द लीडर सेज यू हैव टू लिसन. अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते. और हिटलर ने तो सबको प्रोमिस भी किए थे कि मैं तुम लोगों को यहाँ से सब चीज़ों से ये जो परेशानियाँ उससे बाहर निकालूंगा. सो एवरी वन हैड टू ओबे वॉट ही सेइंग. सो ही नाउ डिसाइडेड, और उन्होंने क्या बोला कि ईस्टवर्ड जाके और कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जोग्राफिकल जो भी प्लेस थी ना उसको वन प्लेस लेके आना है. सारे जो जर्मन्स थे उनको सबको इकट्ठा करके वन प्लेस ही हैड टू ब्रिंग दैम. So establishment of the racial state, देखो यहाँ पर Nazism came into power and quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans. उन्होंने एक community बनाई जो only German people were there, pure racial Germans वो लोग थे. They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans under the euthanasia program. Al-Muth's father had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. अब जो mentally physically unfit थे उन्होंने क्या करा, हिटलर ने उनको मरवा दिया. He didn't want the weak people to stay over here. He wanted all strong and brave people to stay. और सबको जो वीक थे, जो जैसे विमेन थी जो अगर डिसोबे कर रही है या फिर दे आर नॉट ऑफ नाजी कल्ट, देन दे वर किल्ड. उनका एक ही था कि उनको मार देना है. और यहाँ पर इन्होंने हेल्मेट्स फादर ने उनको इस चीज़ को कंडेम भी किया था कि आपने ऐसे आप मार नहीं सकते ना किसी को. बट ही हैड किल्ड. जर्मन ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया. जर्मन ने क्या करा था, फिर पोलैंड और पार्ट ऑफ रशिया को अपने कब्जे में ले लिया. एंड कैप्चर सिविलियंस एंड फोर्स देम टू वर्क एज स्लेव्स. उन्होंने वहाँ के जो सिविलियंस थे उनको कैप्चर करा और उनको फोर्स करा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ पर वर्क करना है एज ए लेबर. ज्यूज रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी. अब जो ज्यूज थे वहाँ के वो सबसे ज़्यादा सफरर्स थे. उनको तो उन लोगों ने नाजी पीपल ने इतना टॉर्चर करा, जस्ट लाइक द पीपल वर टॉर्चर्ड, लाइक यू आर अनटचेबल बट नॉट दैट बैडली. over there the Jews were tortured very badly. They were not allowed to do anything in that place. उनको तो सीधे मरवा देते थे. वो वीका तो मरवा देते, otherwise the people who were fit to work, तो वो लोग like a slave they used to work over there. And over here see, Hitler hated Jews based on pseudo-scientific the theories of race. From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, purpurized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. उन्होंने force कर दिया, कैसे इतना terrorize करा कि they were forced to leave that country. They were forced to leave Germany. उन्होंने बोला कि इतना torture तो कोई सहन नहीं कर सकता है. So they were purposely they were torturing them. Purposely वो लोग उनको terrorize करते थे ताकि ये यहाँ से भग जाएं. Because he said that only one racial people will stay, that is Aryan. Only Nazis, Aryan people, and that also strong people should stay in my country. The
racial utopia. Now genocide and war became two sides of the same coin. Poland was divided and much of north-western Poland was annexed to Germany. वेस्टर्न पोलैंड को भी उन्होंने ख़त्म करके उसको जर्मनी में ले लिया था. देन पीपल और ऑफ पोलैंड वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर पोलैंड लोगों को, जो पीपल पोलिश पीपल थे, उनको यहाँ से छोड़ के जाने के लिए बोल दिया. दे टोल्ड देम टू लीव फ्रॉम हियर. एंड मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स. उनको मारा गया. दे वर मर्डर्ड बाय द पीपल ऑफ हिटलर. पोलिश चिल्ड्रन वर लुक लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली snatched from their mothers and examined by race experts. उनको खींच के ये देखने के लिए कि whether they are the Aryans or they belong to the Polish, बच्चों को खींच लेते थे. अगर उनको पता चल जाता था कि they are not Aryans and they are not the Nazi people, then they were killed. Even the children were killed by him. Then youth in Nazi Germany. हिटलर वॉज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. अब हिटलर नेचुरली, उनको यंग लोग चाहिए थे, उनको तो फिट लोग चाहिए, तो यंग चाहिए थे, तो यूथ जो था उनमें हिटलर को ज़्यादा इंटरेस्ट था. स्कूल्स वो क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड. स्कूल्स को साफ करा गया, मतलब वही साफ क्या, जूस को हटा दिया गया. स्कूल में जो भी जूस बच्चे थे उनको भगा दिया, टीचर्स थे उनको भगा दिया वहाँ से. एंड इन द 1940s जूस वर टेकन टू द गैस चेम्बर्स, इंट्रोड्यूस ऑफ रेशियल साइंस टू जस्ट्री नाजी आइडियाज ऑफ रेस. अब गैस चेम्बर में ले गए और जो भी जूस थे उनको सबको गैस चेम्बर में लेके जाके उन्होंने जस्ट उनको मार दिया वहाँ पर. ही डिडंट वांट एनी जू टू स्टे ओवर हियर. देन चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूज एंड वर्शिप हिटलर. अब बच्चों को क्या सिखाते थे स्कूल में कि आपको जूज तो बहुत ही गंदे लोग हैं, उनको जस्ट हेट करना सिखाते थे. और हिटलर इज़ द हीरो, ही इज़ द वन whom you have to look at as a god. बाकी सब बेकार हैं, उनको जस्ट अवॉइड. और ज्यूज से तो कोई बात करेगा ना, अगर कोई नाजी ज्यूज से बात करेगा तो इवन ही वॉज किल्ड. That type of strictness was there. And then at the age of 14 boys had to join the Nazi youth organization where they were taught to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable. Later they joined the labor service at the age of 18 and served in the armed forces and entered one of the Nazi organizations. In 1922 the Youth League of the Nazi was founded. अब यहाँ देखो सारे ये जो उनको सिर्फ सिखा दिया कि आपको ज्यूज को हेट करना है, फिर आपको क्या करना है, ये कम्युनिस्ट बन के रहना है. एंड जो भी उनको वॉर में वॉरशिप करो, मतलब वॉर में ज्वाइन हो और आपको लड़ना है आपकी कंट्री के लिए, और किसी को कुछ सपोर्ट नहीं, ज्यूज को तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करना. ये सारी उनको ट्रेनिंग दी गई थी. एंड देन द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. नाजी Germany children were told women were different from men. Boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, and girls were told to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. देखो यहाँ पर women के साथ भी फ़र्क होता था कि boys को तो मेल फिगर तो लोगों को तो बोला जाता था कि you have to be strong, you masculine, you have to fight for the country, and female को बोला जाता था you have to take care of the house, your children, and they should be pure Aryan. अगर कोई भी Jew बच्चा मदर के पास मिलेगा तो mother was also killed and the child was also killed if he was Jew. So that problem was there. Girls had to maintain purity at race distance from Jews, look after their home and teach their children Nazi values. But all mothers were not treated equally. Honor crosses were awarded to those who encouraged women to produce more children. Bronze cross for 4 children, silver for 6 and gold for 8 or more. Women who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face and placards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation. देखो इतना गंदा ट्रीटमेंट उनको मिलता था कि अगर उन्होंने किसी जू के साथ कॉन्टैक्ट रखा, बातें करी, तो उन लोगों क्या हेड शेव कर देते थे, बाल हटा देते थे और उनको फुल एरिया में परेड करना होता था प्लग कार्ड डाल के. एंड ऑन दैट प्लग कार्ड दिस वॉज रिटन. सो एंड द फेस वॉज टर्न, मतलब उनके ब्लैक वो काला उनके फेस पे लगा के और उनको परेड करवाते थे. सच थिंग्स वर डन विद द पीपल ओवर देयर हिटलर के रूल में. This is the way he used to torture, whether it's a child, whether it's a female, women, anyone, and whether the person is crippled or anything. He didn't like those person. He used to just torture them or he used to just kill them. दो ही चीज़ ये करता था. द आर्ट ऑफ आर्ट प्रोपोगेंडा. नाजी टर्न मास किलिंग्स स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूज.
ऑथेंशिया फॉर द डिजेबल्ड। अब ये उन्होंने नाम रखे थे जिनको वो मारते थे, मतलब जिस डिजेबल्ड को अगर मारा तो उसको वो लोग क्या बोलते थे, ऑथेंशिया। देन सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता था कि इन लोगों को, वो सिर्फ बोलते थे इवैक्यूएशन, इसका मतलब इन लोगों को गैस चेम्बर में डाल के ख़त्म कर देना है। उनके ये वर्ड्स थे, कोड वर्ड्स जैसे होते थे ना, उस तरह के वो देते थे। गैस चेम्बर्स वो लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक shower heads. Nazi ideas were spread through visual images, film, radio, poster, catchy slogans and leaflets. Orthodox Jews were stereotyped and marked were referred to the vermin, rats and pests. The Nazis made equal efforts to appeal all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. अब उनको क्या बोला जाता था, जो भी ऑर्थोडॉक्स नाजी थे वो तो स्टीरियोटाइप थे, उनको बोल दिया गया था, उनको सिखाना पड़ता था लोगों को कि आपको जो नाजीज बोल रहे हैं वो मानो, नहीं तो वो आपको मार देंगे। एंड जो भी उन लोगों को सपोर्ट करते थे उनको वो स्लेव, लाइक अ स्लेव दे यूज्ड टू वर्क। एंड नेचुरली क्रिपल्ड पर्सन को तो वो कोई भी हो वो नहीं रखते थे, भले ही वो नाजी का हो। ही डिडंट वांट दोज पीपल, तो ही टू जस्ट किल देम। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही बोल दी थी कि जो ये नाजी ही हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो यू लिसन टू देम। अगर आपको नहीं सुनना है तो ही विल किल यू। उन्होंने साफ इनको बोल दिया था लोगों को। देन ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नो पीपल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज। दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर अगेंस्ट जूज एंड जेन्युइनिस्ट बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। अब यहाँ पर देखो लोगों ने क्या पता है, नाजी के आइज से देखने लगे। अब उनको तो डर था, तो वो जो नाजी बोलते थे या यू आर राइट, जो डरेगा तो वो तो बोलेगा ना, वो तो लीडर है, डिक्टेटर है, आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो यू नो दैट ही विल पुट यू इन द गैस चैम्बर और ही विल किल यू, किसी भी तरह से मार देंगे वो तुम्हें। तो वो नाजी बोलते थे हाँ हाँ आप जो बोल रहे हो वो सही है, लाइक यू आर द गॉड, वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट। तो वो उनको बोलना पड़ता था। एंड नाजी एज एन स्पोक द नाजी लैंग्वेज, उनको नाजी लैंग्वेज ही बोलनी है नेचुरली, यू कांट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हर चीज़ हमारी फॉलो करो, everything. So that they were doing. They felt hatred and anger against Jews and genuines believed Nazism would bring prosperity. और उनको बता दिया कि Jews को तो hate करना है और जो भी तुम्हारी problem solve कौन करेगा, only the Nazis will do whatever will do. Germans against brutal and organization crimes committed in the Nazi Empire. Charlotte Barrett's book called The Third Reich of Dreams described now Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. अब यहाँ पर एंड तो ये हुआ कि इवन द जूज स्टार्टेड बिलीविंग इन नाजीज। उनको पता था कि नाजीज ही हैं जो भी कुछ हमारे लिए करेंगे, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो दिस वॉज नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर। थैंक यू।